नरेडको माही ने रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में महिलाओं की अगुवाई वाले विकास को दी मजबूती। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को मान्यता देने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नरेडको की महिला इकाई नरेडको माही ने आज राष्ट्रीय राजधानी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 27 जून को होने वाले चौथे नरेडको माही कन्वेंशन की प्रस्तावना के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व में हो रहे विकास और भारत के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप शहरी विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने बताया कि भारत का रियल एस्टेट सेक्टर, जिसकी वर्तमान में अनुमानित कीमत $265 बिलियन से अधिक है, जो इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है और यह राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 13% का योगदान देगा। इसके बावजूद इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अभी भी केवल 11 से 12% के आसपास है। हालांकि इसमें बदलाव आ रहा है। प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिज़ाइन, निर्माण और निवेश प्रबंधन जैसे हर स्तर पर अब महिलाएं अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। On behalf of the entire leadership of NAREDCO National and NAREDCO Mahi, with a very warm, heartiest welcome and congratulations to all the dignitaries present, especially our media officials. This press meet is being called to discuss and to share the vision, mission and agenda of NAREDCO Mahi's upcoming 4th convention, which is scheduled on 27th of June at Hotel Hyatt Regency at New Delhi. It is my privilege to share the origin of NAREDCO Mahi. NAREDCO Mahi is just a 4-year-old newborn baby, I would say, because under the dynamic leadership of Dr. Niranjan Hiranandani and the President Shri Hari Babu, and along with the Vice President of National Bodies and Governing Council members, it gives me immense proud to share that NAREDCO National Real Estate Development Council works under the patronage of Ministry Housing and Urban Affairs. Our Honorable Housing Minister Shri Manohar Lal Khattar ji is the chief patron of the association, and 3 joint secretaries nominated by Ministry Housing and 3 additional secretaries nominated by Ministry Housing Urban Affairs are the governing council board members of NAREDCO national body. At present, we have 14 state chapters. We have more than 15,000 members pan-India, and in NAREDCO Mahi we have 167 members at the national body, and on pan-India level more than 2,500 members, including our volunteers. Mahi represents a flowing river. A woman in harmony with her spirit is like a river flowing. She goes where she will without pretense and arrives at her destination prepared to be herself and only herself. It's a quote by Maya Angelou. Now, Mahi represents a flowing river, which signifies that all the biggest civilizations, the greatest civilizations have always flourished and developed across the river. So same way at NAREDCO Mahi, we also believe in establishing a new community wherein we all flower together and go together. Thank you so much. Heartiest welcome to all of you. Very good evening, everyone. Thank you so much for coming here, taking your time from your busy schedule to be here for this press conference. And heartiest welcome to all of you on behalf of NAREDCO Mahi. As Preeti has explained about Mahi, it's a Women's Wing of National Real Estate Development Council, and we all are pan-India women working together with a shared vision and working towards not only into the real estate sector but also giving back to the society. I am proudly announcing our 4th National Convention of NAREDCO Mahi, and which will be held at New Delhi at Hyatt Regency on 27th June, 10 o'clock in the morning. So this year's convention will be centered around inspiring theme of Rise and Build, Women Transforming Real Estate for Sustainable Tomorrow.
Friends, we are women, we understand how the home we can make it and how we are actually have the holistic approach of understanding each and everything, and the real estate kind of patience is required in here, and we have seen at every region, pan India, east, west, north, south, all our vice presidents, AVPs and all the members pan India, we are together and we are sharing the same vision of sustainable tomorrow, and we are together growing, and we really want to give back to the society as well. So this theme reflects the growing impact of women in real estate sector as leaders, as innovators, as change makers, and who are not only building successful businesses but also shaping a more sustainable and inclusive tomorrow. Here we are all gathered today. We seek support from you people to fulfill a dream of ours. There was a dream that we dreamt 4 years back. और हमारा एक छोटा सा सपना था कि रियल एस्टेट सेक्टर में जेंडर इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत है. ये मेरा 34th ईयर है रियल एस्टेट सेक्टर में. 17 जून 1991 को मैंने अपनी रियल एस्टेट जर्नी शुरू की थी. और कल आप 17 जून जब मैं बैठी हुई थी और सोच रही थी, मैं यही सोच रही थी कि कितना बदली हुआ है. द सैड पार्ट इज डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, रेरा आ गया, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा बायस है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो अभी भी नरेटको माही तो बहुत मेहनत कर रहा है. पिछले 4 साल से हम अपने 5th ईयर में एंटर कर रहे हैं, लेकिन उनको हम पूरी तरह से अभी भी इस सेक्टर में कॉन्फिडेंटली ला नहीं पा रहे. आपकी काफी लोगों की शक्लें इतनी फेमिलियर हैं और सामने आप बैठे हुए हैं मेरे, और मैं कई कॉन्फ्रेंसेस में आप लोगों से मिली हूं, लेकिन यही एक सपना था जिससे हम शुरू हुए. ये जो सपना हमारा था, इसे साकार करने के लिए हमें ऐसी महिलाओं की जरूरत थी जो प्रो बोनो इकट्ठी हो और बिना किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हुए देने की इच्छा से हमारा एक हिस्सा बने. हमने शुरुआत की. हमारी टारगेट थी कि 108 हमें ऐसी विमेन मिल जाए जो या तो अपनी कंपनी चला रही हैं, या चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, या ऐसी जगह पे हैं जहां वो रोल मॉडल बन सके, या फिर वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके. मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारी जो महिला विंग है नरेटको माही, उन लेडीज ने आज 151 से ज्यादा मेंबर्स अभी हमारे बन चुके हैं और सिलसिला चल रहा है. वॉलंटियर्स तो हमारे बहुत ज्यादा हैं, थाउजेंड्स में जाते हैं, लेकिन जो हमारा जिसे कहते हैं कि कोर टीम है एक जो हमारे साथ चल रही है. जब हम आगे इस जर्नी में बढ़ने लगे तो हमने रियलाइज किया कि हम इकट्ठे होके इस देश को, इस सोसाइटी को और इस सेक्टर को एक बेहतर जगह बना सकते हैं. और वहीं से हमारे ये ख्यालात शुरू हुए कि वाटर सेविंग के लिए निर्मल जल प्रयास शुरू किया, जिसके बारे में स्मिता जी ने आपको डिटेल में बताया और कुछ और भी बताएंगी ये जो अभी फिलहाल ये काम कर रही है महाराष्ट्र में. बहुत ही सुंदर काम. हमारा स्किलिंग का शुरू हुआ. स्किलिंग में सबसे आसान काम हमारे लिए था माही टॉक्स करना, और अभी तक हम 100 से ज्यादा माही टॉक्स कर सके. नरेटको माही की अध्यक्ष सुश्री स्मिता पाटिल ने बताया, संगठन सक्रिय रूप से महिलाओं के लिए सुगम रास्ते बनाने हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि नरेटको माही केवल बोर्ड रूम तक सीमित नहीं है, बल्कि युवतियों के लिए कौशल प्रशिक्षण, जलवायु संवेदनशील निर्माण स्थलों पर स्वच्छता और सुरक्षा, रियलिटी परियोजनाओं में जल संरक्षण, मॉडल और डेवलपर्स के लिए ठोस कचरा प्रबंधन जैसी जमीनी पहलों पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि नरेटको माही का यह प्रयास अब टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंच गया है, जहां महिलाएं अब मार्केटिंग, लीगल, प्रोजेक्ट फाइनेंस और क्लाइंट रिलेशन जैसे पहले कठिन माने जाने वाले क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़. डेफिनेटली आने वाली 27 तारीख को हमारा नेशनल कन्वेंशन है. 27 जून को एट हयात रीजेंसी, और डिप्टी सीएम परवेश वर्मा जी एंड तोखन साहू जी, मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हमारे चीफ गेस्ट है वहाँ पे.
और महुआ के एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज विल बी देयर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। हमारा विजन यही है, थीम यही है कि राइज एंड बिल्ड वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रियल एस्टेट विथ फॉर सस्टेनेबल टुमारो। जो विजन है 2047 का रियल एस्टेट का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स होना चाहिए। नरेडको माही के शाश्वत निर्माण इनिशिएटिव के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम एक सस्टेनेबल सेल क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे नरेडको के 15,000 बिल्डर्स के लिए वहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। और जो विजन है 2047 का फॉर द सस्टेनेबल टुमारो, वी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट। सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल्स, डिफरेंट स्टोरीज हमने वहाँ पे कवर की है, जहाँ पे हमने एक फादर डॉटर का पैनल लिया है जिसमें हम दिखाना चाहते हैं कि फादर की लीगेसी जो है रियल एस्टेट डेवलपमेंट में, वो एक डॉटर आगे लेके जा सकती है और फादर हैप्पीली उनको वो लीगेसी उनके हाथ में दे सकते हैं और वो लीड कर सकती है। ऐसे एग्जाम्पल्स का पैनल डिस्कशन हम करवा रहे हैं ताकि बाकी भी लोग इससे मोटिवेट हो और अपनी बेटियों को वो अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस में दे। नमस्कार। पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था रियल एस्टेट सेक्टर 17 जून 1991 को, तो उस टाइम पे बहुत कम विमेन होती थी। इनफैक्ट विमेन होती ही नहीं थी रियल एस्टेट में, और अगर थी भी तो थोड़ा बहुत सेल्स में थी, कुछ गर्ल्स या कस्टमर केयर में। अब जब हमारे 30 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, तो एक अगर वही हाल चाल रहे तो देश की तरक्की, सेक्टर की तरक्की कैसे ही होगी। देखिए, आप भी जब जाते हैं घर खरीदने के लिए या दुकान खरीदने के लिए या आप अपना भूमि पूजन भी करवाते हैं, तो आप अपने साथ एक लेडी को लेके जाते हैं और उनका पूरा ओपिनियन लेते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस सेक्टर में एक कॉर्पोरेट साइड पे भी, एक मैनेजमेंट साइड पे भी विमेन का ओपिनियन होना चाहिए। जब घर जमीन खरीदी जा रही है, डिजाइनिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है, और बहुत एक आप सोच नहीं सकते कि विमेन जिस टाइप की एक सेंसिटिविटी लाती है स्पेसेस को, चाहे वो कलर हो, लाइट हो, एयर हो, किस टाइप के पौधे लगने चाहिए, एक उनका पर्सपेक्टिव होता है जिसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। और ये इंक्लूजन चाहे वाटर सेविंग हो, चाहे कॉस्ट सेविंग हो, बहुत फर्क पड़ता है इन सब से। तो जब मैं जहां भी जाती थी, मुझे सिर्फ मैं एक अकेली लेडी स्टेज पे होती थी और बाकी सब मेन होते थे, और मुझे ये लगता था कि अब 30 साल के बाद भी कुछ बदली नहीं हुआ। तो जब मुझे एक मौका मिला मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से, रेडको जो 15,000 डेवलपर्स का एक एसोसिएशन है, कि आप आइए और एक फाउंडर के तौर पे आप एक महिला विंग का शुरुआत करिए ताकि जेंडर इंटीग्रेशन शुरू हो उससे। तो बहुत ही खुशी मिली मुझे, और मैंने 1.5 साल के करीब मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट थी, ऑलमोस्ट 2 साल के लिए मैं प्रेसिडेंट थी। अब मैं चेयरपर्सन हूँ और फाउंडर तो लाइफ लॉन्ग रहूंगी ही मैं। तो जब ज्वाइन कर लिया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हमारी जो विमेन है, ऐसा नहीं है विमेन नहीं है, विमेन है और बहुत तरक्की भी कर रही है। उनको ढूंढ के हमने निकाला, 150 के करीब माही सुपर गर्ल्स हैं हमारी, और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वाटर सेविंग पे, जेंडर इंटीग्रेशन पे, स्किलिंग इन द सेक्टर पे, प्रॉपटेक का स्टार्टअप इंक्यूबेटर है उन सब पे, निपुण, डॉल्फिन टैंक। 2047 को लेकर जैसा हमने बताया कि हमारी भूमिका बहुत अहम होने वाली है। महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा इंक्लूजन, जिसे हम बेसिकली जेंडर इंक्लूजन कहें या होलिस्टिक इंक्लूजन कहें, हम नहीं कहते कि हमें किसी तरह का आरक्षण चाहिए। हम ये कहते हैं कि काबिलियत के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार एक मौका तो महिलाओं को जरूर देना चाहिए। जस्ट बिकॉज अ फीमेल इज देयर, यू कैन नॉट पुट देम ऑन द सीनियर पोजीशन इफ दे आर केपेबल, दे हैव द कैलिबर, दे हैव द क्वालिफिकेशन, गिव देम अ चांस। और इसी विजन को लेते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही विजन है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सशक्त करके हर तरीके के वर्टिकल में आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी देश की 2 बेटियों ने जो है काफी बढ़ चढ़ कर इसको लीड किया, उसी तरह नरेडको माही में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, जैसा हमने बताया, निर्मल जल प्रयास,
ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स और वुमेन का जेंडर पैरिटी एंड इंक्लूजन, और इसके अलावा महिलाओं का रियल एस्टेट का जो सॉफ्ट पार्ट है उस पे सबसे ज़्यादा फोकस और योगदान रहने वाला है। और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे बिल्डर डेवलपर्स की, क्योंकि आज से कुछ समय पहले बिल्डर्स हिचकिचाते थे अपनी बेटियों को अपने बिजनेस में लाने में, मगर आज समय बिल्कुल बदल चुका है। टुडे इफ यू सी, उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स जो हैं, उनकी डॉटर्स उनको बिजनेस में ज्वाइन कर रही हैं, बिल्कुल साथ में भागीदारी कर रही हैं। बेटे तो ऑब्वियसली लेगेसी को फॉरवर्ड करते थे, बट डॉटर्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग। इसके अलावा विजन 2047 में मैक्सिमम focus will go on the inclusion for everyone, holistic growth. ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।